So hello everyone and a very good afternoon to all of you and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss about a topic that has been actually very much demanded by my students. That's 100 years of self-respect movement has been completed and 100 years of Kakori Train Robbery happened. Both actually happened in 1925. So please discuss that. So I decided to schedule this class. Am I audible, visible? Is my voice clear? So those who have not watched the other previous revision classes, please watch it. Go to the subscribe to the channel, go to the live section, scroll down, and you will get these previous videos. ये सब देख लीजिएगा, ठीक है? Okay. And ये index वाला तो बहुत ही important है. Okay, you should watch it. And so basically in this class, I have decided to discuss all these, not only the other two, but all these, because all these have completed either 100 years or 150 years. ठीक है? 100 years of self-respect movement, 100 years of Kakori Train Robbery, 100 years of foundation of RSS, Communist Party of India, 150 years of Sardar Patel's birthday, 150 years of Vande Mataram, 150 years of Arya Samaj, 150 years of MAO College. Okay, 150 years of IMD and BSE, Indian Metallurgical Department. BSE is Bombay Stock Exchange. So I've decided to discuss all these topics in one class. So this is actually a fast revision series. But I will not go very much in detail about each and every topic. I will give you a rough idea about all these topics. Okay. But I've given you this because if you want to read further, you can read it. Now you got to know that, okay, these are the important events that happened 100 years back or 150 years back. Okay, so 100 years back means all these events happened in 1925. Right? And 150 years back means all these events happened in 1875. Okay, like foundation of Arya Samaj, 1875, MAO College. What is MAO College? This actually later on become AMU. We'll discuss it. Then IMD is Indian Metallurgical Department. Bombay Stock Exchange has been in the news. तो ये सब हम लोग discuss कर लेंगे. ठीक है? Is it clear? Everything is fine? Is my voice clear? I think yes. Okay. So let us begin with the first one, that is 100 years of self-respect movement. Now I'm asking you, can you please tell me who was the founder of this? And what was the idea of self-respect movement? And it was there in which part of the India? North India, East India, Northeast India, West India, South India, where? Founder or the person who gave the idea? Yes, E.V. Ramaswamy Naikar. He is also famously called as Periyar. Along with, there was one more person, Mr. S. Ramanathan and E.V. Ramaswamy Naikar, who is famously called as Periyar. Yes, it is actually in South India, so you can say Tamil Nadu and Kerala region. Okay. Now, I'm sure you must have heard Periyar is a very famous name in Kerala. You will find a lot of things like Periyar National Park is there, Periyar Tiger Reserve is there, Periyar River is there, Periyar University is there. All are named after that. Yes. So these two are the famous personalities. So they established self-respect movement. So what is the idea behind self-respect movement? So they talked about social equality and abolition of caste discrimination, caste-based discrimination. Okay, this is the thing you should be knowing about. Yes, sometimes it is also called as anti-upper caste movement, yeah, anti-Brahmanism, etc. Also sometimes that is also the term that is referred to this. So please remember it. This is actually the self-respect movement. It has completed 100 years. So the personalities who are behind this are Mr. S. Ramanathan and E.V. Ramaswamy Naikar, also known as Periyar. Okay, so ये ध्यान रखिएगा. Later on, this actually turned to form DMK and AIADMK. So these two are very famous, prominent political parties in the state of Tamil Nadu, and they both trace their origin from this self-respect movement. Okay. So currently, which government is in power in Tamil Nadu? Which political party? And who is the chief minister? Anyone? Yes, DMK is actually in power. DMK is led by Mr. MK Stalin. He is the current CM of Tamil Nadu. The other one, AIADMK, was actually is actually in opposition. So I think if I'm not wrong, AIADMK is in alliance with BJP. So that is what you should be knowing about. So थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा if you are interested in detail about self-respect and all.
Okay, what is the philosophy of Ramaswamy? You can read about it. So he actually, one line में समझ लो, they talked about ending caste-based discrimination, equality, etc. That is what the idea behind self-respect movement. Okay, and these are some of the view about of Mr. E.V. Ramaswamy Nagar. ठीक है, E.V. Ramaswamy और पेरियार. So you can read it if you are interested. तो मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. And equality with stress on economic and social equality. So they talked about economic equality and social equality. Okay. And they talked about men and women to be treated equally. Attachment to caste, religion, varna would be eradicated from society. So they were against discrimination on the basis of religion, caste, varna, etc. So they talked about equality and abolishing the caste-based inequality. That is what the main idea behind this. Now, थोड़ा सा पेरियार के बारे में, let's discuss something about him. So he's E.V. Ramaswamy, right? His name was E.V. Ramaswamy Periyar. Organized self-respect movement, also Dravidar Khazgam, which later on became DMK, right? Anna. Then as well as leading of left-wing politics, architect of Dravidian politics. एक और इनसे associated है Vakam Satyagraha. This was temple entry movement. This also we'll discuss. Okay. Or see, principles was rationalism, self-respect, women's right, and eradication of caste. These were the key words associated with Periyar. Okay. प्लीज रिमेंबर इट. ये सब छोटी छोटी चीजें. अगर अनदर थिंग इज जस्टिस पार्टी, ये भी मैंने देखा कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम से पूछते हैं. सो जस्टिस पार्टी, सो पेरियार वाज रिलेटेड विद जस्टिस पार्टी एज वेल. ओके, तो ये हो गया जस्टिस पार्टी. और आई थिंक आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट की वर्ड्स आई एम हाईलाइटिंग फॉर यू. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, वैकम सत्याग्रह. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव सीन समटाइम्स क्वेश्चंस. देखो हम क्यों मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बता रहे हैं, बिकॉज इफ यू सी पीवाईक्यूज, you have seen there are 2 occasions in the last 2-3 years where we have seen questions from modern Indian history. है ना? And those who have not watched my series, please watch it. Go to the playlist. एक green color का thumbnail मिलेगा playlist में, modern Indian history करके. Please watch the classes. है ना? वो modern Indian history मैंने बहुत तक पढ़ाया भी है वहाँ. है. So we're talking about Vakam Satyagraha. Again, Vakam Satyagraha was started by again Periyar. So Vakam is a temple in Travancore. Travancore Kerala में पड़ेगा. Travancore, kingdom of Travancore was there in modern day Kerala region. Okay, so the idea was to allow, this was actually, it is considered as temple entry movement for lower caste. Okay, so Dalits, Harijans were not allowed to enter the closed streets, etc. So basically this movement, एक line में बता रहा हूँ. So this was actually a temple entry movement for the lower caste people. Okay, and Periyar was very instrumental in this. ठीक है, so ये सब basic चीजें आपको पता होनी चाहिए. And Vakam actually Satyagraha is related with Kingdom of Travancore in Kerala. ठीक है, and a self-respect movement ये तो हो गया. I think आप चाहो उनके बारे में तो पढ़ सकते हो, but whatever we have discussed it, that is more than enough. Justice Party is associated with his life. It is called as South Indian Libertarian Federation, famously called as Justice Party, founded in 1916, and he was like Periyar, Mr. Periyar was instrumental in this. So again, he talked against inequality and supported caste, equality. He supported equality. Okay, so that is what the idea is. And later on, the Dravidian movement, which resulted into the formation of DMK, AIA, DMK, actually is linked with this. Okay, ये आपको पता होना चाहिए. थोड़ा सा देखो, मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. So you'll get to know about it. है द्रविड़ खसगम. Okay. So I've given an idea. So they also talked about liberation of women, women's education, and a willing marriage, widow marriage, orphanage, mercy homes, etc. So they also talked about these social problems and solving the social problem, rather I would say. So these things were in the news. Women's right की उन्होंने बात की पेरियार्स ने, right to property for women, etc. इस डाउरी, तो डाउरी वगैरह के बारे में इनका ओपिनियन, इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा. ठीक है, if you are interested. Just they talked about right to equality, right to property for women also, na? Rationalist. Women should be given their legitimate position in the society. Okay. And age and social custom should not be a bar to marrying women, na? So these are the things. Okay, now let's talk about the another topic. मैंने आपको बताया कि today we are going to discuss 8-9 topics. काफी सारे topics discuss करूंगा. So the next one is 100 years of Kakori train robbery. Can anyone tell me Kakori railway station today you will find where?
कहां पे मिलेगा ये? एंड प्लीज मेंशन एटलीस्ट 2 नेम्स बिहाइंड दैट काकोरी ट्रेन रॉबरी. अगेन ये 100 ईयर्स हुआ यानी 1925 में इवेंट हुआ था. हाँ, ये हम डिस्कस, आई टॉट इन पेड क्लासेस आल्सो. लखनऊ में, लखनऊ के थोड़ा सा पास में उत्तर प्रदेश, राइट? हाँ, यू विल फाइंड दिस काकोरी. तो पहले लोकेशन देख लेते हैं हम लोग, है ना. सो ये उत्तर प्रदेश है. सो दिस इज लखनऊ और दिस इज काकोरी. ओके, हाँ, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राइट राइट. राजगुरु उसमें नहीं थे, राजगुरु शायद उसमें नहीं थे. हाँ, देखो जो मेन फेमस नेम है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, एंड देयर अदर्स आल्सो. तो इसमें एक और नाम जैसे चंद्रशेखर आजाद का भी नाम आता है. वैसे और भी लोग हैं, देयर आर मेनी पीपल, आप सबका नाम पढ़ सकते हो, बट दीज 3 आर फेमस नेम्स. ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान एंड चंद्रशेखर आजाद. So what the incident happened 9th August 2025. So again we have completed 100 years recently. So they all are belonging to HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन. इसी का नाम बाद में HSRA हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, with which even भगत सिंह was related. So भगत सिंह भी इन्हीं से, इसी पार्टी तो नहीं कहेंगे, मतलब ये एसोसिएशन से मतलब एसोसिएटेड थे. ओके, ठीक है. सो ये शाहजहांपुर लखनऊ के बीच रास्ते में पड़ता है काकोरी. वहां पर हुआ ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की, हाँ ना, ट्रेन जा रही थी, उसमें बहुत सारे ट्रेजरी सामान वगैरह थे, पैसे वगैरह थे, एंड मेनी अदर थिंग्स वर देयर. सो दैट वाज लूटेड, ओके, ऑन द रेलवे स्टेशन. दैट इज व्हाई दिस वाज वेरी मच इन द न्यूज. तो उसके बाद होता क्या है कि इनसे रिलेटेड अब क्या ये, तो वो 1925 में दैट इवेंट हैपेंड. ओके, अब इनसे रिलेटेड कुछ चीजें हम लोग को जाना. ये तो समझ गए कि काकोरी ट्रेन रॉबरी हुआ. The date of the robbery is this 9th August 1925, है ना. So there were money related with this British, okay, है ना. I believe they looted the specific train because it was carrying tax money and money bags which were en route to the British government treasury. Okay, they looted on these bags. तो ये सब अमाउंट था, पैसा वगैरह था, इसको लूटा गया because ब्रिटिश के पास जा रहा था. ओके, मतलब ब्रिटिश ने टैक्स वगैरह कलेक्ट किया होगा, उसी को लेके जा रहा होगा दिल्ली की तरफ, समथिंग लाइक दैट. सो ओके, ठीक है. सो दैट इज व्हाट. एंड राजेंद्र लहरी पुल्ड द चेन. अच्छा, यानी चेन पुलिंग किया, फिर ट्रेन रुकी, फिर देन दे लूटेड. दैट इज हाउ इट एक्चुअली हैपेंड. ओके, नेक्स्ट है, अब जो लोग थे, 3 लोग हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान एंड चंद्रशेखर आजाद. दीज 3 आर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज. अदरवाइज और भी लोग हैं, जैसे राजेंद्र लहरी थे, उन्होंने तो ट्रेन चेन पुलिंग किया था, एंड देयर आर मेनी अदर पर्सनालिटीज आल्सो. तो सबका नाम याद रखना, सबके बारे में रीडिंग अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, बट लेट अस डिस्कस अबाउट 3 पर्सनालिटी, इन तीनों के बारे में. राजेंद्र प्रसाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान एंड चंद्रशेखर आजाद. लेट्स टॉक अबाउट दीस 3. सो राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, काकोरी कंस्पिरेसी एसोसिएटेड विद दैट. एक और मैनपुरी कंस्पिरेसी हुआ था. इट्स नॉट मणिपुर, मैनपुरी इज आई थिंक इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो ही कंपोज्ड इन उर्दू एंड हिंदी अंडर पेन नेम्स राम, अज्ञात एंड बिस्मिल, है ना. ठीक है, 100% ही वाज एसोसिएटेड विद आर्य समाज. ये भी डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस ईयर वी हैव कंप्लीटेड 150 इयर्स. What's the actual fact? The actual fact is that on 9th August 1925, Kakori train robbery happened and we have completed 100 years. This is the actual fact. And since it has completed 100 years, it becomes important. कितना अमाउंट चोरी किया था, ये अमाउंट नहीं पूछेंगे एग्जाम में कि 8,000 है कि 4,000 है. Just remember it, that a train taking British money was traveling near Lucknow in Kakori. So the chain pulling happened and these revolutionaries looted those money, because they believe that those were Indian money and that were extracted as tax by the British illegitimately. That is what they believe, है ना. Specific trade because it was carrying tax money and money bags were en route to the British government treasury. इसीलिए लोगों ने लूटा. Okay, is it clear? अमाउंट नहीं जाना है, 4,000, 8,000, that's not a debate. I don't think they'll ask. खैर, तो ये हो गया राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, इनके बारे में. एंड इनका वही काकोरी कंस्पिरेसी फेमस. आर्य समाज से बिलोंग करते थे एंड लेटर ऑन ही जॉइंड हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आल्सो. ओके, ही वाज हैंग्ड आल्सो ऑन 19 दिसंबर 1927 इन गोरखपुर जेल. गोरखपुर इज इन ईस्ट उत्तर प्रदेश. उनको फांसी दे दी थी वही रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के कारण. ओके, ठीक है, शाहजहांपुर में पैदा हुए थे, तोमर राजपूत फैमिली में. ठीक है, एसोसिएटेड विद आर्य समाज. And then he was inspired by Swami Dayanand Saraswati and his book Satya Prakash. इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, आर्य समाज. We'll discuss about it. ठीक है, तो ये हो गया. अच्छा, राम प्रसाद बिस्मिल में एक बहुत फेमस तराना को फेमस किया था. ठीक है, एंड दिस इज वेरी फेमस, सरफरोशी की तमन्ना.
This was sung by Ram Prasad Bismil, but who wrote it? ये एग्जाम में सवाल भी आया था, बहुत सारे एग्जाम मैंने देखा. Who wrote this? है ना? Bismil wrote his autobiography. उन्होंने अपने बारे में अपनी आत्मकथा लिखी when he was in the jail in Gorakhpur jail, and he was found convicted. So उनको फांसी से पहले, और ऐसा कहा जाता है कि फांसी से पहले उन्होंने इसको गाया भी था. और भी ये स्वदेशी रंग, मन की लहर, बट ये बहुत फेमस है, इस पे क्वेश्चन से आया, मैंने देखा है कई बार. हाँ, बिस्मिल अजीमाबादी लिखा है. सो दिस वाज रिटन बाय बिस्मिल अजीमाबादी, सरफरोशी की तमन्ना, रिटन बाय बिस्मिल अजीमाबादी. अजीमाबादी इज एक्चुअली पटना को कहते हैं. ओके, ड्यूरिंग दिस फॉलोइंग जलियांवाला बाग मैसेकर. सो जलियांवाला बाग मैसेकर 13th April 1919. आई हैव टेकन अ सेपरेट क्लास. प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट and you will find modern Indian history का playlist मिलेगा where I have discussed it. Modern Indian history, see, in the last 2, 3, 4 years we have seen at least 2 or 3 occasions where they have asked questions. तो CLAT में modern Indian history से questions आ रहे हैं, इसलिए मैं सब बता रहा हूँ. ठीक है, खैर. So सरफरोशी की तमन्ना was written by Bismil Asimabadi, but it was made popularized by Ram Prasad Bismil. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. ओके, एक हो गया. Next person is Ashfaqullah Khan. He was also involved in the same Kakori train robbery. Again, so he also co-founder of Hindustan Republican Association, which later on became HSRA. Socialist word was added. Hindustan Socialist Republican Army. He met Ram Prasad Bismil and are closely associated with Manpur conspiracy. ठीक है, and इनको भी फांसी दे दिया गया था. He was also hanged. ये कौन से फैजाबाद में? हाँ, फैजाबाद is actually now today it is called as Ayodhya district. Okay, so उनको भी फांसी दे दिया गया था फैजाबाद में, और टुडे व्हाट वी कॉल इट एज अयोध्या बाय ब्रिटिश. ओके, थर्ड फेमस, तीसरा एक और आदमी है, वो चंद्रशेखर आजाद है. सो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. अशफाकुल्लाह खान वाज हैंग्ड एट फैजाबाद जेल 1927. ऑन द सेम डे राम प्रसाद बिस्मिल एंड रोशन सिंह वर एग्जीक्यूटेड. उसी दिन इनको भी फांसी दे दी गई थी. नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद. ही वाज आल्सो बिलोंगिंग टू हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी व्हिच लेटर ऑन बिकेम HSRA. एंड इनके बारे में कहा जाता है कि ही shot himself in इलाहाबाद में थे वो, एंड इलाहाबाद में शायद चंद्रशेखर पार्क करके भी कोई, अगर if anybody is from इलाहाबाद he must be knowing it, और प्रयागराज. ठीक है, that is what you should be knowing. So he was also involved in the same Kakori case. ठीक है, काकोरी conspiracy है ना. है ना. एक चीज बताइए, HRA का नाम बदलकर HSRA कर दिया था लोगों ने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी. व्हाई? बिकॉज 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, मैंने आपको बताया था. हाँ, अल्फ्रेड पार्क है, राइट, कुशाग्र अहमद, इलाहाबाद में, राइट. सो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में. सो वेव ऑफ सोशलिज्म या कम्युनिज्म चल रहा था 1920s में, यूथ के में, पूरे इंटायर वर्ल्ड में, इवन इंडिया में भी. सो ऑल दीज हु वर इन 1920s के आसपास जो लोग थे, सब लोग सोशलिस्ट से बहुत इंस्पायर्ड थे, स्पेशली द यूथ्स. And that's why they had also changed the name HRA to HSRA, Hindustan Socialist Republican Army. ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी, सचिन सनियाल, अशफाकुल्लाह खान, many other personalities were there. Even भगत सिंह also, है ना, joined it in 1928. ठीक है, तो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए भगत सिंह के बारे में. ये आपने स्टोरी पढ़ी होगी, है ना. ओके, सो दैट इज अबाउट इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब देखो चूंकि हम लोग 8-10 टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हम सबको बहुत डिटेल में नहीं जा सकते हैं. So in discussing it, we are touching the topics, ठीक है, so that each and everything can be covered. Now let's have 100 years of RSS. So RSS was again established in the year 1925. So basic चीज आपको सिर्फ पता होनी चाहिए at least. ठीक है, you can, if you are interested, you can read in detail. What is the name of the founder of RSS? So the answer is Mr. KB Hedgever. Okay, केशव बलराम हेडगेवर was his name. So founder का नाम अगर पूछा जाए तो ये आंसर कीजिएगा. 27 September 1925. So again 100 years completed, है ना, 27 September को. So current chief is Sir Sangchalak is the term used for RSS chief. हिंदी में term use करते हैं Sir Sangchalak, and Mr. Mohan Bhagwat is the RSS chief. And other word used, there is another important post that is called as General Secretary. English में लिखते हैं General Secretary, Sir Karevah. Okay, and who is General Secretary? So Mr. Dattatreya Hosabale. Okay, so these two things you should be knowing about. ठीक है, and it is considered as a part of the larger family of Sangh Parivar. So Sangh Parivar includes RSS, BJP, Vishwa Hindu Parishad, etc. etc. ठीक है, so that is what you should be knowing. ठीक है, अगर आप चाहो तो और you can read it in detail, but this is what the basic idea I have given to you. The next is 100 years of CPI. So who founded CPI in 1925? Name of the person. Anyone?
Communist Party of India, and later on it got split. M.N. Roy, yes, Kushagra, very good. So M.N. Roy is a very famous personality, in the history of India. So 1925, Kanpur. So पहले कानपुर ऐसे लिखते थे. Now it is written like this. Kanpur is in Uttar Pradesh. Again, 26 December 1925. So in 26 December, 100 years will be completed. He also founded Communist Party of Mexico. Yes. So ये 1925 में establish हुआ. Later on, CPI got split between CPI and CPIM. Why? 1964 के आसपास हुआ था, है ना. मतलब इतना डिटेल याद होना चाहिए, बट इतना पता होना चाहिए. CPI जो पार्टी बनी थी 1964 के आसपास, आफ्टर इंडिया चाइना वार. इंडिया चाइना वार हैपेंड इन 62. आफ्टर 2 years later they got split, है ना. So they split between CPI and CPIM, Communist Party of India Marxist. इसको CPM भी लिखते हैं. अच्छा ध्यान रखिएगा, दिस इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ये जो M है ये मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है. Why I'm saying? Because there is one more organization called as CPI Maoist, and this is a banned organization under UAPA. Okay, तो ध्यान रखिएगा, एकदम सिमिलर टाइप का नेम्स होता है, कुछ बैंड है, कुछ अलाउड है, लाइक ठीक है. So they are very close names and it creates confusion. So this is CPI and this is CPIM. So they have CPIM की power, they were in power for almost 35 years in West Bengal. ठीक है. So CPI and CPIM are the two communist parties, prominent communist parties in India right now. ठीक है. ओके, ठीक है. तो अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना, बट इतना काफी है. M.N. रॉय फाउंडर थे, ठीक है. और जनरल सेक्रेटरी अभी जो है डी राजा है, मिस्टर डी राजा. एंड आप चाहो तो थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि व्हाई दे गॉट स्प्लिट एंड ऑल पास्ट में, एंड दे हैव सर्व्ड एज द गवर्नमेंट्स. इनका एक लेबर विंग है, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये बहुत फेमस है. AITUC, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड. और भारतीय खेत मजदूर यूनियन, बट AITUC इज वेरी फेमस. और ऑल इंडिया किसान सभा पीजेंट विंग है. ज्योति बासु फॉर 23 years, yes, he was the CM, राइट कार्तिक. हाँ ठीक है. तो ये आपको मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैपन आफ्टर बिफोर 100 years बिफोर, है ना. तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है. लेट्स मूव ऑन. 150 years of Sardar Patel's birthday. So what is, can you please tell me some important points related with Sardar Patel? What was his designation? वन 50 years का क्या मतलब हुआ? मतलब 1875 में something happened, like 1875 में he was born. Iron Man of India, first Home Minister, first Deputy Prime. Very good, very good. Karthikeya Kushagra, you all right. He's called as Iron Man of India, first Deputy Prime Minister, first Home Minister. ठीक है. National Unity. अच्छा, why do we? अच्छा, इनकी बर्थडे कब आता है? When do we celebrate the birthday? And why the term unity is used? National Unity Day क्यों मनाते हैं? एकता, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं इनकी बर्थडे पर. क्यों, क्या खास हुआ था? हाँ, so 31 अक्टूबर अभी गुजरा है कुछ दिन पहले. So 31 अक्टूबर 1875 was born. राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, या राष्ट्रीय एकता दिवस इन हिंदी, ठीक है. हाँ, he convinced actually when India was born on 15th August 1947, there were more than actually 500 के आसपास princely states were there, है ना. उस सबको जोड़ के एक में लाना was a very difficult and daunting task. So he convinced, है ना, and he ensured that all those princely states should become one country. Okay, that is what the idea is. He integrated 565 princely states into India. Very good. हाँ, ठीक है. तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. अच्छा, आपको इनके भाई के बारे में anyone knows? His brother, कोई जानता है? फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट होम मिनिस्टर, ये हो गया, है ना. सीनियर लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सरदार का टाइटल मिला था. अच्छा, फाइंड आउट करना होमवर्क कि ऑन विच ओकेजन ही वाज गिवन सरदार टाइटल. ठीक है, ये होमवर्क है, फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक है. हाँ, इनके भाई थे विठाल भाई पटेल, ठीक है. इनके भाई के बारे में बताता हूं. हिज ब्रदर वाज विठाल भाई पटेल एंड ही वाज द स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925. उनके भाई, हिज ब्रदर, और स्वराज पार्टी से थे. उनकी डेथ हो गई थी 1933 में, पहली हो गई थी डेथ, ठीक है. हाँ, इनको सरदार का टाइटल कोई इवेंट पे मिला था, एक विलेज में मूवमेंट था, है ना. यस, कुशाग्रा, राइट. गो एंड फाइंड आउट व्हाट वाज द एग्जैक्ट इवेंट इन व्हिच ही वाज गिवन सरदार टाइटल. आफ्टर द क्लास इज ओवर, यू विल बी प्रोवाइडेड रिकॉर्डेड वीडियो एंड कमेंट इट. नीचे कमेंट कीजिएगा
कि कौन से इवेंट पर उनको सरदार टाइटल मिला। ठीक है, ये हो गया उनकी बात। अब he is called as Iron Man of India. He is the one who is considered patron saint of India's civil servant. Civil servant मतलब वही IAS, IPS, IRS। ठीक है, so patron saint मतलब एक तरह से गुरु, मतलब उन्होंने शेप दिया था सिविल सर्विसेज को इंडिया में। ठीक है, and that is why 21st April is celebrated as Civil Services Day, because 21st April 1947 he addressed the first batch of civil services, and civil servant officers are called as steel frame of India ना, 21st April 1947 को। ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है, जो कि 31 अक्टूबर 2018 को एस्टैब्लिश किया गया था, है ना, ऑन हिज बर्थडे। ओके, एंड इज अप्रोक्सीमेटली 182 मीटर्स हाइट, हाईएस्ट है ना। यस कुशाग्रा, आई थिंक एज फार एज आई रिमेंबर, यस वो जो सरदार नेम है वो बारदौली सत्याग्रह से रिलेटेड है। यस, वंस यू चेक इट, बट एज फार एज आई रिमेंबर यू आर राइट। हाँ, यस, ठीक है, तो ये बात हो गई, वी आर डन विद दिस, है ना। तो कहां पर इनकी स्टैचू है, तो यहां पर से एक नर्मदा रिवर आती है, ऐसे छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से आके स्टार्ट हो गया ऐसे समथिंग, इट गोस लाइक दिस, दिस इज नर्मदा रिवर। ठीक है, फिर यहाँ पे गुजरात, ये बॉर्डर है गुजरात मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पे केवड़िया जगह, नाउ इट इज कॉल्ड एज एकता नगर। ठीक है, और यहीं पर ही है, तो कोई बगल में नर्मदा रिवर, एंड हियर इज एक्चुअली द स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ मिस्टर सरदार पटेल। ठीक है, तो ये सब बात है पता होना चाहिए। इट्स एक्चुअली इन गुजरात ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। ओके, नाउ तो अभी देखो, अभी सेलिब्रेट किया गया राष्ट्रीय एकता दिवस, वही 31 अक्टूबर को, 150 ईयर्स ऑफ सरदार पटेल बर्थडे। सो रन फॉर यूनिटी मार्च वगैरह निकाला गया, है ना। केवड़िया, वही एकता नगर को केवड़िया कहते हैं गुजरात में, वेर यू विल फाइंड दिस स्टैचू। ठीक है, नेशनल यूनिटी डे, है ना। एक भारत श्रेष्ठ भारत, थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना। राम वी सूतर जो इसके आर्किटेक्ट हैं, 31 अक्टूबर 2018 को इनॉग्रेट किया गया। द नेक्स्ट इज 150 years of वंदे मातरम। दिस वाज आल्सो वेरी मच इन द न्यूज। हु रोट इट, किसने लिखा? इनिशियली 1875 तभी 150 years हुआ है। Later on added in 1882, it was added in a book. What is the name of the book? And this book is based on which revolt? हाँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चैटर्जी। ठीक है, so 1875 को it was written, but later on it was added in a book 1882 में। वो कौन सी बुक थी जिसमें ऐड किया गया? And that book is based on which famous revolt? आनंद मठ, very good, आनंद मठ। And this is based on which revolt in Bengal? उनकी स्टोरी पर है, मतलब सन्यासी रिवॉल्ट या सन्यासी रेबेलियन कहलाते हैं। हाँ, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस, है ना। ये भी पूछते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसको सिंग किया था। ठीक है, 1882 आनंद मठ में बुक में ऐड किया गया, हालांकि पब्लिश पहले ही कर दिए गए थे 1875 में, दैट्स व्हाई 150 इयर्स कहा जा रहा है। ठीक है ना, 1870s लिखा ना, फर्स्ट पब्लिश इन द बुक आनंद मठ। ठीक है, 150 इयर्स ऑफ, देखो 6 नवंबर को भी न्यूज था पीआईबी केस में, है ना। कंपोज्ड इंडिपेंडेंटली, यानी 1875 में इसको कंपोज कर लिया गया होगा और 1882 में इसको बुक में ऐड किया गया। ठीक है, फर्स्ट संग बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इन 1896 इन कांग्रेस सेशन कलकत्ता, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इट बिकेम पॉलिटिकल स्लोगन ऑन 7th अगस्त 1905। क्या हुआ? 7th अगस्त is celebrated as National Handloom Day. So this is actually partition of Bengal के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट, है ना। What do you call it? 7th August 1905 स्वदेशी मूवमेंट, है ना, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट था ना। तो 7th अगस्त is celebrated as National Handloom Day because of that। ठीक है, ठीक है ना। फर्स्ट सॉन्ग वाज पब्लिश्ड इन 1875, तो इसीलिए 150 इयर्स का आ जा रहा है। एक चीज आप बताए रखिएगा, 1907 में मैडम बी कामाजी कामा थी, उन्होंने एक ट्राई कलर फ्लैग को वेव किया था स्टटगार्ट बर्लिन जर्मनी में, और इस पर भी वंदे मातरम लिखा होता है, ऐसा ये फ्लैग हो, दिस इज द फ्लैग। ठीक है, हो सकता है ऐसा पूछ ले, तो इसलिए मैंने बता दिया। जो जो चीज मैं कोशिश कर रहा हूं, है ना, मैक्सिमम थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम मी एंड एज मच एज पॉसिबल आई एम ट्राइंग टू गिव इट टू यू।
ठीक है, ये हो गया सन्यासी रिवॉर्ड पर बेस्ड था, है ना. बंगाल फैमिन, सन्यासी रिवॉर्ड वही बंगाल फैमिन पर बेस्ड स्टोरीज है एटसेट्रा. वो जो बुक है आनंद मठ, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग, है ना. बंकिम चंद्र चैटर्जी, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. ठीक है, इज नोन एज साहित्य सम्राट इन बंगाली, फ्रॉम बंगाल. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. 150 years of Arya Samaj. Who is the founder? Please tell me. 150 years यानी 1875 established. Founder name. Why it is famous? What are the key slogans associated with Arya Samaj? Dayanand Saraswati ji, right. Go back to Vedas and infallibility of Vedas are the two key words associated with this Arya Samaj movement. Yes, go back to Vedas, right. Kushagra, हाँ. So Dayanand Saraswati ji founded this. ठीक है, प्रोसेलेटाइजेशन मतलब स्प्रेड करना है, नहीं फैलाना उसको सेंस में ना, तो इंट्रोड्यूस प्रोसेलेटाइजेशन. और ये हो गया. हाँ, तो इनका इनफैलिबिलिटी ऑफ वेदास, एक ये है कि वेदास में कोई गलती नहीं है, दूसरा है कि गो बैक टू वेदास, दीज वर द टर्म्स गिवन बाय हिम. ठीक है, दयानंद सरस्वती जी, आर्य समाज, 1875 बॉम्बे एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, ओके, ये हो गया. देन ही वाज अगेंस्ट आइडल वर्शिपिंग, दे रिजेक्टेड अदर वर्क्स एटसेट्रा. इसको चाहो तो पढ़ सकते हो, और फिलॉसफी रिलेटेड विद हिज लाइफ. ठीक है, सो दयानंद सरस्वती जी के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, है ना. इनकी एक बुक है, फर्स्ट टू गिव द कॉल ऑफ स्वराज अलॉन्ग विद, है ना. स्वराज का टर्म जो है लोकमान्य तिलक जी और इन्होंने मिलकर दिया था. एक बुक है, हाँ, सत्य प्रकाश, दिस इज द नेम ऑफ द बुक. करके पूछते हैं हु रोट द बुक सत्य प्रकाश. सो दयानंद सरस्वती जी. ठीक है, he talked about equal rights for women etc and all. ठीक है, opposed untouchability. ठीक है, बाकी पढ़ लीजिएगा, यू कैन रीड इट, दैट इज व्हाट यू शुड नो. ठीक है, बाद में लेटर ऑन आर्य समाज एक्चुअली थोड़ा सा स्प्लिट वगैरह कर गए थे, एक इधर एक गुरुकुल बन गए, एक कॉलेज पार्ट, इस तरह समथिंग कहते हैं. सो वन ऑफ द सेक्ट एक्चुअली इज हैविंग डीएवी कॉलेज, है ना. दयानंद सरस्वती का भी 1824, हाँ, 201 बर्थडे, राइट. 201 बर्थडे, 200 बर्थडे होता तब इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, सो इन्हीं के फॉलोअर्स जो है डीएवी स्कूल चलाते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल. ठीक है, डीएवी स्कूल, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड. ठीक है ना. नेक्स्ट है 150 years of MAO College, Mohammedan Anglo Oriental College, which later on became Aligarh Muslim University. This was established in 1875 by Sir Syed Ahmad Khan, was one of the founders, है ना. ठीक है, क्वीन विक्टोरिया का 56 बर्थडे था उस पर, इवेंट पर. एंड लेटर ऑन in 1920 this MAO College, Mohammedan Anglo Oriental College, became Aligarh Muslim University. ठीक है, सो इतना आपको बताना चाहिए. 1875 अगेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, तो इसीलिए 150 years हो गया. नेक्स्ट है 150 years of IMD, Indian Meteorological Department. Please tell me it is under which ministry and who is the minister? Indian Meteorological Department समझो, that is responsible for telling you the cyclones, forecast, etc. जो बताते. 50 years of emergency, bookworm, we have done a class. आप सर्च करना 50 years of emergency career launcher law entrance, you will get a dark red color thumbnail, and that is very very important. जो आप पूछ रहे हो ना कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं. हाँ, IMD, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. ठीक है, यस, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस, वेरी गुड, राइट. कुशाग्रा कार्तिक, यू राइट, है ना. ठीक है, तो ये वही बताते हैं, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह बताते हैं, साइक्लोन्स का प्रेडिक्ट करते हैं एटसेट्रा एंड ऑल. मिस्टर जितेंद्र सिंह इज द मिनिस्टर. ठीक है, 150 years of BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. एक क्वेश्चन आया था एमएच सेट में, आई थिंक पूछा था, और 2-3 बार लगातार पूछा है, मल्टीप्लाई 2-3 टाइम्स रिसेंट ईयर्स में. ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया, ऐसे पता नहीं क्यों लिखा रहा है. ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया, सो इट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. हाँ, वो दलाल स्ट्रीट उस जगह का नाम है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, so, एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, और वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कौन सा है, कोई बता सकता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई, 1875 established, एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज एंड 6th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड. ठीक है, और इनका इंडेक्स का नाम बताइए. दादा भाई जयराजी का 200 बर्थडे हुआ है क्या? आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक. तो वो भी इंपॉर्टेंट हो गया, उसको भी पढ़ लीजिएगा. दादा भाई नारोजी 1825, यस, 200 years of दादा भाई नारोजी.
हाँ ओल्डेस्ट इज नहीं, ओल्डेस्ट नहीं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज. ओल्डेस्ट जो है ना वो एम्स्टरडम स्टॉक एक्सचेंज है, वो अब एग्जिस्ट भी नहीं करता. निफ्टी 50 एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है. निफ्टी 50 इसका है सेंसेक्स, बीएसई सेंसेक्स लिखते हैं, जो 30 कंपनीज में होता है. निफ्टी 50 इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. ओके है ना, ये सब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना. प्लीज रीड अबाउट दिस. अच्छा, एक दो चीज और बच्चे बता रहे थे, चलो मैं भी ऐड कर देता हूं. दादा भाई नारोजी के बारे में ऐड कर लेते हैं, है ना. आई जस्ट चेक इट, समवन रोट कि सर 200 ईयर्स हो गया. यस, ही वाज बोर्न इन 4th September 1825. So let's add that. तो 200 years we have completed. इनके बारे में एक दो चीज पता होनी चाहिए. फर्स्ट थिंग, ही हैज बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मल्टीपल टाइम्स. आई थिंक 2-3 बार रह चुके हैं, 3 ओकेजन्स प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस. ठीक है, एक चीज और पता होना चाहिए, ही वॉज इलेक्टेड हाँ सेकेंड पर्सन ऑफ इंडियन डेसेंट. हाँ, इंडियन ओरिजिन के फर्स्ट आदमी थे जो कि ब्रिटिश में एमपी बने थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, इनकी एक बहुत फेमस बुक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ये पूछते हैं एग्जाम में, हु रोट दिस बुक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. दादा भाई नारोजी. इनको पुकारो नाम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ही इज फेमसली कॉल्ड. तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया इसलिए कहा जाता है कि ही इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश. ठीक है, क्लियरली लिख देते हैं, साफ से नहीं लिखा रहा, पता नहीं क्यों क्या हो गया आज. दादा भाई नारोजी, नायरोजी. ठीक है, इनकी बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. इसमें उन्होंने एक फिलॉसफी दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ. जैसे आज जो इंडिया से क्या होता है, ब्रेन ड्रेन होता है, तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये पैसा लूट के ले जा रहे हैं. इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश उन्होंने दिया था. ठीक है, और इसीलिए और इनको फेमसली कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. ठीक है, सो 200 ईयर्स इनका कंप्लीट हुआ है. सर कैन यू चेक लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, आप चेक कर लीजिए कार्तिकेय, ऊपर नीचे होता रहता है. ठीक है, वो आप देख लीजिए कौन है लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज अभी. ठीक है, सो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ अबाउट ड्रेन थ्योरी उन्होंने दिया था अबाउट दादा भाई नारोजी. प्लीज चेक इट विद द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, largest stock exchange in the world. विकिपीडिया पे तो न्यूयॉर्क एनवाईएससी को दिखा रहा है. ठीक है, देख लीजिएगा, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. Tolito is saying you are best. Thank you, Tolito, for praising me. So now this is I think all about today's class. We'll be meeting you tomorrow at 3 p.m. ठीक है, हमने काफी कुछ हद तक रिवीजन करा दिया. We'll meet you tomorrow with sports. जो पिछले 1 year में sports related जो events हुए, we'll discuss that. So this is all about today's class. Please press the like button, share this video. Thank you.